جنگ بدر اسلام کی پہلی لڑائی، کافروں کی تعداد 1000، مسلمانوں کی تعداد 313 سمجھیے، اتنے کم، مسلمانوں کے پاس سواری بھی کم، ہتھیار بھی برائے نام، لیکن اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ فرشتے اترے اور کافروں کو شکست ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے کہا، جو کافر تھے، کہا ہم نے دیکھا عجیب و غریب مخلوق تھی، کبھی کبھی فرشتے نظر آتے لیکن اپنے اصلی شکل میں نہیں نظر آتے۔ دیکھا وہ بھی لڑ رہے تھے، جو بچ گئے، جو مارے گئے، جہنم کو پہنچے، ان کی بات نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں بھی اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ فثبت الذین، جو لوگ کے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے مومن بندوں کو ثابت قدم رکھو، اور فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، گردن کاٹو، ہاتھ توڑو۔ اللہ نے حکم دے کر فرشتوں کو بھیجا جی۔ ایک فرشتہ سارے لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے بہت سارے فرشتوں کو بھیجا، اس لیے کہ تعداد جب زیادہ رہتی ہے انسان کو ہمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 3000 فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے، نہیں جی 5000 آئیں گے، 5000 فرشتے بدر کی لڑائی کے لیے، اتنے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ جو لوگ وعظ و نصیحت کی مجلس میں رہتے ہیں وہاں بھی فرشتے آتے ہیں۔ وعظ و نصیحت کی مجلسیں، وہاں فرشتے آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا فرشتوں کو ہم نہیں دیکھتے، اور فرشتوں کے لیے کوئی بڑی جگہ نہیں چاہیے، اور فرشتے اللہ کے عجیب و غریب مخلوق ہے کہ صاحب اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے رہتے ہیں۔ وہ بیٹھیں گے تھوڑی جگہ، 1 انچ جگہ، الحمدللہ بیٹھ جائیں گے، ان کو 2 قدم 3 قدم کی ضرورت نہیں۔ فرشتے اللہ نے ان کو اسے پیدا کیا ہے۔ شیطان بھی ویسی ہے جی، اس کو جو چھوٹی جگہ بھی ملی تو وہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو کر جب اٹھو نا ناک چھنکو، اس لیے کہ شیطان نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، ناک کے اندر شیطان کیسے بیٹھے گا جی؟ کہا اللہ کے رسول فرمائے فرشتوں کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، ان کے لیے کوئی بہت بڑی جگہ نہیں چاہیے۔ اصلی شکل میں کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا، اللہ اکبر، پورا کنارہ بھر گیا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے جبریل علیہ السلام کے۔ جیسے آپ مشرق کی طرف دیکھیں یا کسی بھی طرف دیکھیں نظر آتا ہے نا، کچھ بھی نہیں نظر۔ جبریل علیہ السلام سعدن افقہ، جبریل علیہ السلام جو پر کھول کے تھے آسمان کے اوپر، اتنے بڑے تھے، لیکن جب چھوٹے ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر انسانی شکل میں بیٹھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، ان کے شکل میں آتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر جبریل علیہ السلام بیٹھے، اپنے گھٹنوں سے ان کے گھٹنے کو لگا لیا اور ہاتھ رکھ کے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھے، ہاتھ رکھے اور ایک ایک سوال کرنے لگے۔ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ سارے سوالات کیے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کا جواب دیا، اور عجیب بات یہ تھی، پوچھتے اللہ کے رسول جواب دیے تو بولتے آپ کا جواب ٹھیک ہے، آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ردو علیہ السائل، ارے ابھی پوچھ رہے ہیں سوال، ان کو بلاؤ جی۔ صحابہ ادھر ادھر دوڑے، غائب، لیکن وہاں تک انسانی شکل میں بیٹھے تھے، وہاں سے چلے گئے۔ تو دیکھو کیسے وعظ کی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मजतमा कौमुन फ़ी बैतिम मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, अगर कुछ लोग वाज़ व नसीहत की मजलिस में बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं और आपस में दीनी मुज़ाकरा करते हैं, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उनको घेर लेते। अल्लाह अकबर। कैसा घेरते नहीं जान सकते हम लोग, लेकिन हमारे साथ फरिश्ते हैं, हम फरिश्तों के साथ बैठे हैं। वग़शियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उनको छा जाती है, अल्लाह की रहमत उन पर छा जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, देखो जी, तुम्हारे अमल से कोई भी जन्नत को नहीं जाएगा। इतना नेक काम करते ना, 60 साल की उम्र में 60 साल मस्जिद में ही रहकर गुजारे, नमाज पढ़े, सब कुछ किए, इसके बावजूद तुम्हारे जन्नत में जाने के लिए ये काफ़ी नहीं है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप भी? कहाँ? वला आना, मैं भी नहीं जा सकता जी। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिन मिन्हु, अल्लाह की रहमत का साया होता मैं जाऊँगा, अल्लाह की मेहरबानी होगी तो मैं जाऊँगा जन्नत को। तो यहाँ भी ऐसी है कि साहब फरिश्ते इनको घेर लेते हैं और रहमत अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होती है। और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाह फ़ी मन इंदहु, फरिश्ते उनको घेर लेते। और अल्लाह ये मस्जिद में जो ज़िक्र बैठे हैं, फरिश्तों से ज़िक्र करते, देखो मेरे ये बंदे हैं मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह का ज़िक्र, मेरा ज़िक्र करते हैं, मेरी किताब पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। वाज़ की मजलिसों की ख़ासियत ये है कि साहब वाज़ व नसीहत की मजलिस में फ़रिश्ते शरीक होते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और सब अल्लाह ताला इन लोगों का जो बैठ कर इल्मी बात करते हैं और कुरान पढ़ते हैं, फ़रिश्तों के पास अल्लाह ताला उनका ज़िक्र करता है। इससे भी मालूम हुआ कि फ़रिश्ते आते हैं, रहते हैं और तलाश करते हैं कि साहब मजलिस ज़िक्र कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह। रात को तिलावत कुरान करने वाले पर अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। तहज्जुद पढ़ते ना, तहज्जुद की आवाज़ सुन के भी फ़रिश्ते आते हैं। एक तो हम आहिस्ता पढ़ते हैं, अगर लोग सोते हैं आजू बाजू तो आहिस्ता पढ़ते हैं, कोई नहीं है ज़रा ज़ोर से पढ़ते हैं। ऐसे एक मरतबा हुआ, एक सहाबी थे, उसैद इब्न हुदैर उनका नाम था। रात में तहज्जुद पढ़ने लगे, घोड़ा बंधा हुआ था, उनका छोटा बच्चा यहया सोया हुआ था। अब ये पढ़ रहे तहज्जुद, घोड़ा उछल रहा है। अब ये बंद करते, घोड़ा खामोश हो जाता, फिर पढ़ते, फिर घोड़ा उछलता। इनको परेशानी हुई कि साहब बच्चा बाजू बैठा सोया हुआ है, अगर ये घोड़ा रस्सी तोड़ लिया तो मेरे बच्चे को रौन देगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। ऐसे उन्होंने नमाज तो पढ़ी, लेकिन अजीब व गरीब वाक़या उनके साथ पेश आया। फिर उसके बाद नमाज ख़त्म करके देखे तो कुछ रोशनियाँ हैं, रोशनी, उसको देखते रहे, चलते चलते ऊपर वो ख़त्म हो गई रोशनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किए, अल्लाह के रसूल रात ऐसा वाक़या हुआ मेरे साथ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सकीनत थी जी, वो सकीनत वाले फ़रिश्ते थे जो तुम्हारी क़िरात सुन के तुम्हारे पास आके ये कर रहे थे। घोड़ा उनको देख के
डर रहा था। अगर तुम सुबह तक भी पढ़ते ना, वो फरिश्ते ऐसे ही तुम्हारी क़िरात सुनते रहते और लोग भी देखते उस रोशनी को, सकीनत वाले फरिश्ते को। ये कैसे होगा जी? हमको ईमान लाना है। अल्लाह के रसूल जो फरमाए हम पर ईमान लाना है। हम क्या करते हैं? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह के फ़रिश्तों पर हमारा ईमान है। अल्लाह ने इन फ़रिश्तों को बहुत सारे मक़ासिद के लिए पैदा किया है, जान डालने के लिए भी, जान निकालने के लिए भी, हमारा हिसाब किताब लिखने के लिए भी। फ़रिश्तों की इतनी ड्यूटी है, इतनी ड्यूटी है, साब शुमार नहीं होगा। कितने फ़रिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया जी, अल्लाह अकबर। एक सेकंड में कितने लोगों की जान फरिश्ते निकालते होंगे, अल्लाह अकबर। कितने फरिश्तों के निकालते होंगे जी जान निकालने के लिए? एक सेकंड के अंदर कितने दुनिया में बच्चे पैदा होते होंगे, उनके जान डालते होंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। मीकाल अलैहिस्सलाम, कितनी जगह बारिश बरसाना है, उनका काम है। उनके साथ हज़ारों फरिश्ते रहेंगे, बादल को खींच के ले जाना है, फिर वहाँ बारिश बरसाना है जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है। फरिश्तों की कितनी ड्यूटी है, अल्लाह अकबर। बहुत सारी ड्यूटियाँ अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की मुकर्रर की है। हमको ईमान रखना है, हमको यकीन रखना है कि फ़रिश्ते हैं अल्लाह के मखलूक, और फ़रिश्ते अगर से हमको नहीं नज़र आते लेकिन उनका वजूद है, वो मौजूद हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं। रात को वज़ू करके सोने वालों के साथ फरिश्ते रहते हैं। ये बड़ी खूबी है जी। रात में जब आप सोना चाहते हैं, वज़ू करें जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं, फिर बिस्तर झाड़ते हैं, कपड़े से झाड़ के सो जाते हैं, बावज़ू सोते। जब भी इंसान ज़रा करवट लेता है, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरे इस बंदे को माफ़ कर दे, अल्लाह वज़ू बना के सोया है, सुभान अल्लाह। हमारे लिए, हमारी मग़फ़िरत के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं और हमारे साथ सोते हैं। समझो, कहाँ देखेंगे जी हम फ़रिश्तों को? हाथ लगा के क्या देखेंगे, हैं क्या फ़रिश्ते? नहीं जी, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो हमको पूरा ईमान है, पूरा यकीन है, सुभान अल्लाह। जब भी करवट लेता है, करवट बदलता है, तो फरिश्ते कहते हैं या फरिश्ता उसके साथ जो है वो कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अब्दिका फ़इन्नहु बाता ताहिरा, अल्लाह तेरे इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे इसलिए कि वज़ू करके सोया है। फरिश्तों की मदद भी हमको मिलती है, फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। इसलिए जब ये सब चीज़ें हम सुनते हैं, इस पर अमल करने की कोशिश करना। कोई बड़ा काम नहीं वज़ू करके सोना, मामूली काम है वज़ू करके सोना, बावज़ू सोना, तहारत के साथ सोना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी फजीलत है। लिहाजा अमल की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तरह हम जो वज़ू करके सोएंगे, जब इतनी बड़ी खूबी है और फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं, हमको चाहिए कि साहब ऐसा करें, सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना सोते वक्त, सुभान अल्लाह। फरिश्ते हमारी हिफाजत करते, शैतान हमसे दूर रहता। आयतुल कुर्सी हत्ता तख्तिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा अवैता इला फिराशिका फ़क़रा आयतुल कुर्सी हत्ता तख्तिमा फ़इन्नका ला यज़ालु अलैका मिनल्लाहि हाफ़िज़ वला यक़रुबुका शैतान हत्ता तुस्बिहा। जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़ कर सो गए तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी हिफाजत करने वाला फरिश्ता तुम्हारे साथ रहेगा, शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने में 2-3 मिनट लगेंगे। पढ़े आयतुल कुर्सी, बच्चे को याद रहती है। कितनी बड़ी खूबी है आयतुल कुर्सी पढ़ने की।
فرشتے ہمارے ساتھ رہتے، ہماری حفاظت کرتے. اللہ اکبر. ایسے ہوتا نا، برے خواب بھی نہیں نظر آتے بہت سارے لوگوں کو. جو آدمی کے آیت الکرسی پڑھے بغیر سوتے ان کو ہو سکتا ہے کہ برے خواب نظر آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کو کچھ بھی تکلیف بھی دے، کچھ بھی کرے. لیکن آیت الکرسی پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. لہٰذا آیت الکرسی پڑھنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی.